Good evening. 2D arrays basically are a combination of rows and columns. The reason we call them 2D arrays because they have two dimensions, they have rows and columns. And इनके real life uses होते हैं कि आपकी जो image representation है bitmaps में, आपका tabular data, आपकी जो board games की जो programming implementation होती है, तो सारी आपकी 2D arrays use हो रही होती है. Basically आप इसको matrix के तौर पे imagine कर सकती हो. Okay, then you have 2D array algorithms. इसके अंदर सबसे पहले declaration आती है. Declaration is a bit different. इसमें आपने lower बाउंड से अपर बाउंड तक आपने पहले रोज बतानी होती है और फिर आपने कॉलम्स बताने होते हैं. So they can either start from 0 and they can either start from 1. So when you say declare the name of the array, then you write array and then you write rows 1 to 5 rows and 2 columns और उसके आगे टाइप. So ये same format है. Then how do we output all the values in a 2D array? So 2D array जो ना वो आपकी हमेशा से होगी. Okay, तो इस पे so आपके पास अब जैसे हमने कहा 5 rows and 2 columns है. Yes. So you will get something like this. इसमें 3, 4, 5 rows होंगी और इसके बाद you will have 1 and 2 columns. ठीक है. And then यहाँ पे ये सारा आपका जो है डेटा इसमें actually आएगा. So this is how you visualize 2D arrays. बिल्कुल tables की तरह ही होती है. Okay. So if you want to input all the values, so you will either go for each row or for each column. So it depends आपने किस तरह से इसको करना है. So इसमें आपके पास nested loop होगा. Why? Because you'll pick one row, so you'll have to go to every column, and if you pick one column, so you'll have to go to every row. So a single loop से नहीं हो सकता. So इसके लिए अगर आपने row wise चलना है, so देखो row 1, तो column 1, column 2, फिर row 2, column 1, column 2, row 3, column 1, column 2, row 4, column 4, 1, column 2. तो उसके लिए row आपका outer loop में आ जाएगा और column आपके लिए loop में आ जाएगा, and then you can print all the values one by one. Then if you want to read all the values in each column one by one, so उसके लिए column जो है ये आपका outer loop में आ जाएगा. So columns 1 to 2, rows 1 to 5. So first you select the column and then you select the row 1, 2, 3, 4, 5. Then column 2, 1, 2, 3, 4, 5. इस तरह से. ठीक है. ये आप लोगों का basic visualization हो गई. Okay. Then you want to input the values into direct columns. Okay. कई दफा ये होगा कि आपको इस तरह उसने डेटा दिया होगा, उसने कहा होगा कि column 1 जो है ना उनको लेबल किया हुआ होगा. This is purely for demonstration purposes. Obviously आप index को लेबल नहीं कर सकते, but they would have told you कि जो column 1 है ना इसमें आपकी student ID आएगी और column 2 में उनके marks आएंगे. So in that case you do not need to apply a nested loop क्योंकि आपको पता है कि आपने values को आपने कौन से column पे रखना है. So for that you will use a direct for loop like this और उसमें आप direct column number जो है ना वो input कर दोगे, column 1, column 2, and this would be a single loop. This would not be a nested loop. So आप पहले रो 1 पे जाओगे. So रो 1 पे आपको पता है कि स्टूडेंट आईडी और मार्क्स आ रही है. So you will put them there. So रो 1 कॉलम 1 पे स्टूडेंट आईडी आपने रख दी और कॉलम 2 पे मार्क्स रख दिए. जिन स्टूडेंट आईडी जो भी सेकंड रो पे आएगी आपने उसके वहां पे आईडी रखी, वहां उसके मार्क्स रख दिए, एक्सेट्रा. ठीक है. सो इनपुट के लिए भी इसी तरह से ये है और आउटपुट के लिए भी ये बिल्कुल इसी तरह से ये है. अगर आपको मैं कहूँ लेट्स से कि यू हैव टू आउटपुट ओनली द फर्स्ट कॉलम, तो यू डू नॉट नीड टू राइट अ नेस्टेड लूप. आपने एक सिंगल लूप रन करना है जहाँ पे आपकी रोज चेंज हो रही होंगी और कॉलम नंबर आपका 1 फिक्स होगा. जैसे यहाँ पे देखो, इफ आई एम सेइंग कॉलम नंबर यस, तो यहाँ पे कॉलम नंबर जो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा इफ आई पास इनटू, और उसके बाद जो आपकी रो है वो चेंज हो रही होगी इनसाइड द लूप. ठीक है. सेम थिंग है. Okay, then what if you want to initialize all the values of the 2D array? So उसके लिए again आपको एक nested loop चाहिए होगा और आपने सब rows के सब columns को जाना है, and then you can initialize it to whatever the value you want to. So जैसे हमारी ये देखकर हम info है, so उसके हर row और column में जाके आपने -1 लिखवा दिया. Then sum and average of all the 2D array. So पूरी 2D array के अंदर अगर आपके पास random values पड़ेंगे 13, 90, 12, 11, 6, 15, 66, 88, 1, 3, 7. So इसलिए बाद में क्या करना है, अगेन आपने हर रो के हर कॉलम पे जाना है और जो हम टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस एरे का सिंगल इंडेक्स करते थे, नाउ विल यूज बोथ द इंडिसेस रो एंड कॉलम और उसको हम टोटल में ऐड करते जाएंगे और ये आपकी जितनी भी वैल्यूज है ये 1 by 1 सब ऐड होती जाएंगी एंड विल गेट द सम ऑफ 2D array और इसको हम पेरेंट पे डिवाइड कर देंगे बाय नंबर्स और नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई टू नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके. देन स्पेसिफिकली आपको ये भी कह सकते हैं कि आपने सिर्फ एक रो को सम करना है. सो फर्स्ट रो में आपको कहता हूँ कि आपने रो 2 को सम करना है. अब रो 2 के लिए आपने क्या करना है, आपकी रो जो है वो कांस्टेंट होगी
और आपके कॉलम्स चेंज हो रहे होंगे, पहले कॉलम 1 होगा फिर कॉलम 2 होगा. सो दैट्स व्हाट is different here. Now you will run for column number of times, or every time you will add the row number जो भी आपका fixed आ रहा है ऊपर पैरामीटर में, और कॉलम आपका चेंज हो रहा होगा. So this will essentially be row 1 column 1 और उसके बाद row 1 column 2. तो इस तरह से 1 by 1 ये आपकी जो भी पूरी rows पे सम हो जाएगा. Same for column. So you guys can read this. उसके बाद maximum और minimum सेम एज 1D एरे. नेस्टेड लूप लगाना है, हर दफा आपने वैल्यू गेट करनी है. अगर वो ग्रेटर देन मैक्स है तो आपने उसका नंबर उसको असाइन कर देना है, वरना मिनिमम में असाइन कर देना है. बट इन 1D एरे वी जस्ट रिटर्न वन इंडेक्स. ठीक है, जैसे अगर ये 1D एरे जो हम कह देंगे कि इंडेक्स 2 पे लार्जेस्ट वैल्यू लेट्स से, नाउ यू हैव टू टेल द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ रो एंड कॉलम बोथ. So for that you need to save the value of maximum row and you need to save the value of maximum column, and then same for minimum row and minimum column. So जो भी आपकी करंट रो की करंट कॉलम इंडिसेस की वैल्यू है ये लूप वेरिएबल्स की, उनको आपने दो वेरिएबल्स में जस्ट स्टोर कर दिया, एंड देन स्टोर द सेम थिंग इन द अदर टू वेरिएबल्स फॉर मैक्स एंड मिन, एंड देन दैट्स इट. ठीक है, एंड देन यू कैन आउटपुट इट ऑल टुगेदर. और उसके बाद वी हैव लीनियर सर्च इसमें. सो लीनियर सर्च अगेन, अगर इफ यू अंडरस्टैंड 1D एरेज प्रॉपर्ली, सो इट्स द सेम थिंग. You have the nested loop, and then again you check if the value is there, and then you will save the row and column, and then you can update the loop, and then you end. So ये यहाँ पर procedure से होगा. अगर तो उससे होता function से, तो you could have just returned the value. यहाँ पे you could have just return like that. So इस तरह से आप return करके आप value को ला सकते हो वापस. ठीक, and then you don't need to do any of these flags and all of that stuff. It's only done because ये procedure function will return the keyword does the same. And then bubble sorting, ये थोड़ी सी ना complicated है. So bubble sorting मैं आपको बताता हूँ. इसमें थोड़ा सा complication ये है कि let's say you have these values here. So मैं कहता हूँ ये है 001, इसको भी कर लेते हैं कि 13, 14, 15, 18 and 20, और इनके ये मार्क्स है आपके पास. अब आपको क्वेश्चन में ये कहेगा कि आपने स्टूडेंट के मार्क्स को यूज करके जो ना आपने 2D एरे को सॉर्ट करना है. बट द थिंग इज कि व्हेन यू सॉर्ट देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उनकी स्टूडेंट आईडीज को भी आपके साथ सॉर्ट करना है. सो 90 और 11 ठीक है, बट 11 और 66 आर नॉट इन द राइट पोजीशन. सो व्हेन यू ब्रिंग इन 66 हियर एंड यू ब्रिंग 11 हियर, यू आल्सो नीड टू सॉर्ट देयर आईडीज. सो आपका जो 15 है वो यहाँ एक इंडेक्स एक रो पर आएगा, और जो उसके ऊपर वाले की वैल्यू वो नीचे आएगी. सो सिमिलरली 66 यहाँ आ जाएगा, 11 यहाँ पे आ जाएगा. This is the only main point that you have to follow when you are doing bubble sorting in the 2D array. That you also have to switch the values for the other columns as well. ठीक है, so अगर इसमें 3 columns होंगे तो आपने क्या करना है, अगर आपने इस column के ऊपर वैल्यू स्विच की तो आपने इनकी भी वैल्यू स्विच करनी है और थर्ड column की भी करनी है. So everything else is the same. You run the for loop nested number of time, आपने current और next value ली. अब आपने जो swapping करनी है वो आपने 2 times करनी है. So if the current is less than the next value, then you first pick the value in the current column. जो हम सभी आपको column है, let's say marks वाला हमारा column है. So first I swap these two. So once it's done, वही steps है कि जो भी current value at the second column, bring it, then override the next value, and then you bring back the original one. Once this is done, then you will also do it for the first column. So यहाँ पे भी आपने क्या करना है, आपने इनकी वैल्यूज को आपसे स्वैप कर देना है, और उसके लिए भी you now change to column 1, and then you save the values, and then you retrieve the values. This is all there is to 2D array.